Hello class first year. So now we are going to start the business studies, the another book in your syllabus. Well, in your syllabus, accountancy, business studies and economics. Okay, in commerce section, these are three subjects that will be attended by you in class first year and class 12th. So business studies means 80 marks written exam and 20 marks for your practical. Okay, so regarding practical we will discuss in that time before the practical, and this is the theoretical book. Firstly we are going to start chapter number 1, that is called nature and purpose of business. Business, firstly you will need to understand it. What is business? In fact, a word is designed or maintained just like business means, that is etymologically by formed by busy, means busyness. What is busyness? Busy and then ness, busyness, that will be now called business. Means when you are engaged in any activity that is related to money, that is related to give and take, that is related to transaction, that is related to purchase and sales, it is called business. Means an activity that is engaged in purchasing and selling of the things, it is called business. Okay, and the other word that is means from starting it is used, it is called trade. The word from France, trade, means a give and take process, give and take process for money, it is called trade. Means whatever you have, if you are want to sell it, right, for getting the profits, for getting the margins, it means it is called trade. Means whatever you have and you just sell it, you just allow anyone to have it in place of money, means you are offering a price of it for it, it is called trade. कुछ भी आप देते हैं और उसके एवज में मनी को रिसीव कर लेते हैं, एनी फॉर्म ऑफ मनी, तब उसको आप ट्रेड कहते हैं. ठीक है. और अगर हम स्टार्टिंग से ही इसको डेफिनेशन को और देखें, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड टू सेल समथिंग, मीन्स जस्ट लाइक यू मैन्युफैक्चर अ थिंग फॉर सेलिंग. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. जब भी आप कुछ बनाते हैं सेल करने के लिए, सो इट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन. ठीक है. ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं लेकिन उनको सेल नहीं करते. हमारे पास बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको, जैसे हम स्क्रैप, आप स्क्रैप होता होगा न्यूज़पेपर और पुराने बर्तन हो जाते हैं या वट एवर, सो मैनी थिंग्स, तो वो हो जाते होंगे, तो आप उनको सेल करते होंगे. स्क्रैपर आता होगा घर पे, वो आवाज़ लगाते हैं स्क्रैप सामान, बेकार सामान, कबाड़ी वाले मतलब कि वो लेने के लिए, और वो ले जाते होंगे. सो दिस इज़ नॉट अ बिजनेस. मीन्स वट एवर यू हैव एंड you used it, then after you sell it, it is not called business, it is not called trade. Means a product that is manufactured, that is produced to sell, and you are interested to sell, and that's why you are manufacturing it, it is called trade. Okay, it is called business. A give and take process for earning money, for earning profits, for earning margins, this is called business.
Is it done? So business means a process of receiving something and giving something, give and take process to earn profit. It is business, means trade. Done. So chapter starts with the activities, means which activities are called human activities, and in human activities two types of activities are done by humans. Because we are from commerce section, so we just consider the activities in two types, economic or non-economic. Is it okay? Economic activities and non-economic activities. किसी भी चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया जो होता है वो सिर्फ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ही होगा, एज पर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड यू आर द पार्ट ऑफ कॉमर्स नाउ and you are going to in that area. Okay, any activity means so many activities are done by the humans, but when we just consider it as economically or not economically, now these activities will be considered in business studies. Okay, only economic activities will be considered in commerce. Only economic activities, economics आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, इतने सारे चैप्टर्स वहाँ पे आपने पढ़े थे डेवलपमेंट के, 9th क्लास में भी पढ़े हैं। इकोनॉमी कैसे चलता है, क्या क्या होता है इकोनॉमी में, मीन्स द एक्टिविटीज़ दैट आर रिलेटेड विद द मनी। सिंपली अगर आपको समझने को है तो मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक हो जाती हैं, और उसी मनी को फॉर्म करने, उसको अरेंज करने, एनालाइज करने का नाम ही इकोनॉमिक्स होता है। वो अभी इकोनॉमिक्स वाले वीडियोस में, इकोनॉमिक्स की क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट। इकोनॉमिक, दीज आर रिलेटेड विद द मनी, मीन्स एन एक्टिविटी that is engaged in earning money, मीन्स इसके होने से कुछ भी अर्न हो रहा है, मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात। क्या है, जिस भी एक्टिविटी में मनी इन्वॉल्व है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटीज़ जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, मीन्स योर मोटिव इज़ नॉट टू गेट मनी आफ्टर डूइंग द एक्टिविटीज़, these activities will be considered as non economic activities। वो सारी एक्टिविटी जिसमें आपको पैसे की कोई डिमांड नहीं है, बस आपको करना है, ठीक है, सोशल डीड है आपकी, आपको करना है, तब वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कही जाती हैं, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें आपका डिमांडेड है कि आप अर्न करेंगे, आप पैसा कमाना चाहते हैं, तब उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Is it okay? Description starts now here. Economic activities are those by which we can earn our livelihood. Keep yourself engaged to earn something in return is economic activities. Okay, just like doctors, teachers, drivers, sweepers or clerks are all engaged in economic activities. Means a company owner who is producing something, just like chair, your stationaries, your means all vehicles are manufactured in factories. So means all the person, basically the person is engaged in an activity to earn profit, to earn money, to earn margins, to earn wealth. It is called economic activity. Have you got it? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? वो एक्टिविटी जिसमें आपको अर्न करना है पैसा। आप अपने फ्रेंड की हेल्प करते हो, यस और नो? यस, करते ही होंगे, अच्छे बच्चे हो। फ्रेंड की हेल्प करते हो तो उसमें कोई अर्निंग नहीं है ना, वो सोशल है, वो आपका इमोशन है। घर के इतने सारे काम करते हैं हम लोग, वो भी इमोशन है, हमारे ही काम है, ठीक है, उसके लिए आप कोई अर्निंग नहीं करते। लेकिन जब आप उस फील्ड में हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक ऐसा डीड करते हैं, एक ऐसा टास्क होता है जिसके बेसिस पर आपको
अर्न करना होता है या आप कर रहे हैं। जैसे कि जितने भी और आप प्रोफेशंस देखते हैं, आप अपने फादर को देखते हैं, आपकी मदर अगर वर्किंग में है तो उनको देखते हैं, या अपने रिलेटिव्स को देखते हैं, उनके पास कोई ना कोई एक ऑक्यूपेशन, एक कोई ना कोई सर्विस, कोई ना कोई एक प्रोडक्शन लाइन है जिससे वो वर्क करते हैं और अर्निंग होती है, पैसे आते हैं। ठीक है, उस काम को करने के लिए इतने पैसे मिलते हैं। ठीक है, सैलरी है तो वो एक फ़िक्स अमाउंट हर महीने पर इतना मिलता है। अगर आप बिजनेस में हैं, आपके फैमिली बिजनेस में है या कोई भी पर्सन बिजनेस में है और वो कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उसको बेचते हैं, तब आपको वहाँ से पैसे मिलते हैं, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं या फिर गुड्स बनाए जाते हैं। दो ही तरीके के प्रोडक्शंस होते हैं, राइट। गुड्स मतलब स्टॉक या जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस वाली चीज़ें हैं जितनी भी, ठीक है, वो टेंजिबल जिसको कहते हैं आप, है ना। अभी उसके बारे में पढ़ेंगे आप, एसेट्स के बारे में आगे। तो जितने भी प्रोडक्ट्स आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, अभी भी आप जिस समय आप मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो के थ्रू और बिजनेस स्टडीज़ का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट आपके पास है वो भी आप किसी कंपनी ने बनाया होगा, है ना। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, वो भी किसी कंपनी ने बनाया होगा। जिस जगह पर बैठे हैं, ठीक है, कपड़े पहनते हैं आप, खाना खाते हैं, पैकेट्स फूड आते हैं आपके किचन में, किचन आइटम्स हैं, जितनी लग्जरीज़ घर में आप यूज़ कर रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो किसी ना किसी कंपनी ने या किसी पर्सन ने बनाकर दिए हैं। वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे थे आपके लिए, क्योंकि वो बेचना था उनको और आपको उसकी नीड थी, आपको ख़रीदना था, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। ठीक है, इज इट डन? इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स जिनका मोटिव ही नहीं है ना। मोटिव क्या नहीं है? नॉट टू अर्न प्रॉफिट। एक्टिविटी दैट अ मोटिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट मीन्स दे डोंट हैव एनी मोटिव टू अर्न प्रॉफिट और अर्न मनी और एनी काइंड ऑफ मीन्स कोई इकोनॉमिक हेल्प नहीं है। ठीक है, बस आप करते हैं उन एक्टिविटीज़ को। एज द रिटन इन दिस स्लाइड, एक्टिविटीज़ विच डोंट हैव एनी इकोनॉमिक मोटिव एंड are performed with a feeling of love, sympathy, humanity and patriotism are known as non-economic activity। मीन्स जितने भी एक एक्टिविटीज़ हैं ये कहीं रिलेट नहीं करती कि आपको पैसा मिलेगा, बस आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इनको करते हैं, आप अपने रिलेशंस के लिए इनको करते हैं, ठीक है, लव के लिए करते हैं, सिंपैथी के लिए करते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप जा रहे हैं रोड पे और एक कोई ओल्ड एज हैं, उनका एक छाता गिर गया, छड़ी गिर गई, कोई सामान सड़क पे गिर गया, है ना, आपने उठा के दे दिया। ठीक है, क्या हुआ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक सिंपैथी हुई, है ना। कोई रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा छोटा बच्चा, या कोई और एक ओल्ड एज है, कोई वो नहीं कर पा रहा है रोड क्रॉस, आपने रोड क्रॉस करा दी, आपने अपने फ्रेंड की हेल्प कर दी। ठीक है, आपने देखा कि जैसे अभी देखो, हाँ, लेटेस्ट एग्जांपल, अभी कितना बड़ा कोरोना वायरस की वजह से कितना ज़्यादा एपिडेमिक मीन्स पूरे वर्ल्ड इससे ज़्यादा जो है वो एक हैरश हो रहा है, बहुत बुरी फीलिंग पूरे वर्ल्ड को उस समय हो रही है ना। अब इसमें जितने भी लोग हेल्प कर रहे हैं, आपने भी की होगी, है ना, हम सब ने हेल्प की है किसी ना किसी तरह से। जिन लोगों तक फूड नहीं पहुंच पा रहा, वो अर्न नहीं कर पा रहे उस टाइम में, या उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं है कि वो अपने परचेस कर सकें फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए, तो ये सभी जो हैं आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं इस टाइम पे, उन लोगों तक फूड पहुंचाया, क्लोथ्स पहुंचाए, मेडिसिन्स पहुंचाई हैं, वो सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, क्योंकि आपकी एक ह्यूमैनिटी बन जाती है। ह्यूमैनिटी है हम सब में, है ना, इंडियंस में तो सबसे ज़्यादा ही है, हमें हमारे ब्लड में, हमारा डीएनए है कि हम ह्यूमन रेस में परफेक्ट पर्सन हैं इंडियंस। तो हेल्प कर रहे हैं लोग एक दूसरे की, ये सभी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि उनको ये जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उनकी हेल्प की जा रही है, नीडीज़ की, उनको फूड दिया जा रहा है, क्लोथ्स दिए जा रहे हैं, मेडिसिन्स दी जा रही हैं, उनको शेल्टर्स भी दिया जा रहा है। तो इसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है, है ना, आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, आप
ह्यूमैनिटी है, वो ज़रूरतमंद है, आप उनकी ज़रूरत कर रहे हैं, दैट्स डन। ये एक ह्यूमैनिटी है, एक ह्यूमन नेचर है ना, हेल्प करते हैं हम एक दूसरे की। तो जो भी हेल्प हो रही है विदाउट एनी रिसीविंग, ठीक है, मीन्स नॉट मनी, कुछ नहीं चाहिए वापस में, बस आप दे रहे हैं, ठीक है, जस्ट यू आर डोनेटिंग, नो रिसीविंग वेयर। सो दिस इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जैसे जस्ट लाइक प्लेइंग, डांसिंग, गिविंग डोनेशंस, हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर फैमिली, और अ बॉय प्लेइंग एंड ओल्ड मैन क्रॉस द रोड। ये इन्होंने भी लिख दिया है, स्लाइड शो शेयर पे है। ओके, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। Now the new point is when you just arrange the types of economic activities. Economic activities होती कौन कौन सी हैं, means how many types. तो in it the number one point is business, profession and employment. Business, profession and employment, right? Right. So business, what is business? The activities that are done to earn profits. Profession means ये भी वही होता है, सैलरी लेनी होती है इसमें, है ना. एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी सैलरी लेनी होती है, लेकिन इनमें इतनी आसान बात नहीं है. बिजनेस का मतलब है जैसे अभी आपने, अगर आपके पास पेन रखा है, नोटबुक रखी है, तो पेन बनाने वाली कंपनी बिजनेस कर रही है, राइट. पेन बनाने वाली कंपनी बिजनेस कर रही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट को के रॉ मटेरियल को लाती है, उससे एक पेन को मैन्युफैक्चर करती है, उसको कवर करती है, मार्केट में भेजती है, रिटेलर तक आता है, रिटेलर से आप ख़रीदते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ठीक है. वो अगर 3 रुपये में बन के तैयार होता है तो 5 रुपया उसका रेट रखा जाता है, मान लो, होता नहीं है वैसे ऐसा, है ना. 1-1.5 रुपये का एक पेन बनता है तो उसे 5 रुपये का रखा जाता है बेचने के लिए, तो क्योंकि उसमें सभी के प्रॉफिट्स ऐड होते हैं, है ना. कंपनी भी कमाएगी, रिटेलर भी कमाएगा, होलसेलर होगा वो भी कमाएगा, स्टॉकिस्ट होगा वो भी कमाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी, जीएसटी भी लगेगी, सारी चीज़ें होंगी, तो उसी रेट के अंदर होता है. उस पर लिखा होता है ना MRP, आपने देखा होगा MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. MRP रिटेल का मैक्सिमम प्राइस है, कितने भी रुपए लिखा हो, मान लो 5 रुपीज़ लिखा है ना, 50 लिखा है, 500 लिखा है, 5000 लिखा है, तो ये बार्गेनिंगेबल रेट होता है. इस पर अभी डिस्कस करना अभी बाकी है, आप आगे डिस्कस करेंगे. बहुत सारे पॉइंट है, सारे डाउट अगर आपने शायद मन से इसको सुन रहे होंगे और देख बिजनेस को पढ़ने के लिए होंगे या कॉमर्स का पार्ट बनने वाले होंगे, तो हर चीज़ हमसे रिलेटेड हो जाती है, सब कुछ, है ना, सब कुछ. तो अब इनके डिफ्रेंशिएशंस देखते हैं. नेक्स्ट पेज को टर्न करेंगे. अब ये आता है बिजनेस. इसका डेफिनेशन अभी आपको क्लियर हो गया है, एक और बार आप इसका रीडिंग कर सकते हैं अच्छे से कि बिजनेस होता क्या है. जैसे टर्म बिजी से बना, फिर बिजीनेस हो गया, मीन्स बिजीनेस. बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी. हाउएवर इन स्पेसिफिक सेंस business refers to an occupation in which people regularly engage themselves within a view to earn profit. प्रॉफिट कमाने के लिए वो उसमें एंगेज रहते हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स हों या सर्विसेज हों, ठीक है. सर्विसेज मतलब जैसे टैक्सी सर्विसेज हैं, कोरियर सर्विसेज हैं, LIC पॉलिसीज़ हैं, जैसे पॉलिसीज़ होती हैं लाइफ इंश्योरेंस में, बैंक्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना. वहाँ पे कुछ बनता नहीं है, मतलब कि मैन्युफैक्चर नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, है ना. तो ये दो चीज़ें इनको आप अच्छे से समझ लो. मैं इसको पहले भी अभी बताया भी था शायद आपको. एक तो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्शन. प्रोडक्ट दोनों तरीके से हैं, या तो वो गुड्स फॉर्म में होगा फिजिकल फॉर्म में, या फिर वो सर्विस फॉर्म में होगा. दोनों ही बिजनेस करते हैं. यहाँ पर मान लो कि एक पेन बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सर्विस के तरीके से आप स्कूल को कह सकते हो. चलो, स्कूल भी एक सर्विस है. स्कूल सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, आपको टीचिंग दे रहा है, उसके लिए ट्यूशन फीस लेता है आपसे, है ना, फीसेस लगती हैं. तो कोई भी कुछ भी बनता है तो प्रोडक्ट होता है, एक चीज़ प्रोडक्ट बनता है. प्रोडक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, गुड्स हो सकते हैं, ठीक है,
गुड्स मतलब कि जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट का मतलब जिनका कोई एग्जिस्टेंस है, वो एक अस्तित्व को रखते हैं, ठीक है, फिजिकल, ठीक है। और दूसरी तरफ आते हैं सर्विसेज। सर्विसेज मतलब ये कोई फिजिकल कंपोनेंट नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन okay, so business involves production or purchase or exchange of goods and services to satisfy the needs of people with aim to earn profit. ओके, अर्न प्रॉफिट को बार बार ये रिपीट किया जा रहा है, मैं भी इसको ध्यान दे रहा हूँ लगातार और आपको इसी तरफ अटेंशन दे रहा हूँ कि व्हेन एवर द अर्निंग प्रॉफिट इज एंगेज इट इज कॉल्ड अ बिजनेस, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान रखने के लिए और बिजनेस को ध्यान रखने के लिए भी यही है। यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है अर्न प्रॉफिट। अभी जो आगे आने वाला है एम्प्लॉयमेंट, वहाँ प्रॉफिट अर्न नहीं होगा, प्रोफेशन में नहीं होगा, वहाँ पे क्या होता है, सैलरीज होती हैं, वेजेस होते हैं, एक सम ऑफ अमाउंट होता है दैट इज फिक्स्ड फॉर द मंथ। यस, सो नाउ मूव टू द पर्सन नेक्स्ट नंबर। उससे पहले अभी आप यहाँ पे लास्ट लाइन और पढ़ लीजिए। द पर्सन हु आर एंगेज्ड इन बिजनेस आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं मीन्स एंटरप्रेन्योर। वैसे एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है कि अ पर्सन हु इज़ रेडी टू टेक रिस्क, जो रिस्क लेने को तैयार है, एंटरप्रेन्योर है ना। और रिस्क से ही बिजनेस चलता है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद आप ये 100% बिल्कुल भी इसके लिए डिटरमाइंड नहीं हो सकते कि आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, राइट। तो एक रिस्क है। अभी रिस्क टॉपिक आप पढ़ते हैं, इसी चैप्टर का पोर्शन है रिस्क, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो रिस्क लेने को जो तैयार है वही एंटरप्रेन्योर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, प्रोफेशन। प्रोफेशन का सबसे बड़ा जो पॉइंट है, मीन्स इसको सेपरेट करने वाली जो चीज़ है वो है क्वालिफिकेशन। अ स्पेशल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। स्पेशल क्वालिफिकेशन, जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है वही उस ऑक्यूपेशन को, उस प्रोफेशन को हैंडल कर सकता है, उससे अर्निंग कर सकता है, वो लॉफुल पर्सन होगा। जस्ट लाइक अ डॉक्टर, डॉक्टर को ही अलाउ है कि वो मेडिसिन्स को प्रिस्क्राइब कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है, सर्जरी कर सकता है, एडवाइस कर सकता है किसी पेशेंट को फिजिकली और मेंटली पोजीशन में, ठीक है। कोई और पर्सन अगर ये काम करता है तो वो इलीगल माना जाता है। डॉक्टर ने स्टडी किया है, 5 इयर्स लगे उसे MBBS करने में, उसके बाद 2-3 इयर्स और ज़्यादा भी लग सकते हैं शायद, उसको लगे किस में, MD करने में, तब वो एक मास्टर ऑफ डॉक्ट्रिन बन के तैयार होता है और तब वो सर्जरी करने को और मेडिसिन देने के लिए प्रिपेयर पर्सन हो जाता है। लॉयर्स, उनके पास डिग्री होती है LLB, है ना, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव, लॉ एंड लेजिस्लेटिव होता है, उनके पास डिग्री होती है, वही बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होते हैं, वही किसी को एडवोकेट कर सकते हैं, एडवोकेसी जो कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ जज, वही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, राइट। दूसरा, टीचर्स, स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है जिसको बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन किया जाता है, उसके बाद तब एक स्किल डेवलप हो मतलब स्किल तो वैसे वो जेनेटिक होता है, और ये डिग्रीज करने के बाद ही कोई पर्सन टीचर होता है किसी स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है। नर्सेस, इनके पास भी डिप्लोमाज होते हैं, डिग्रीज होती हैं, तभी वो नर्सिंग का कोर्स होता है पूरा, उसके बाद करने के बाद ही वो पर्सन जो है नर्स बनेगा, है ना। वरना तो सभी, अगर जिनके पास डिग्रीज नहीं हैं, जिनको जो क्वालिफाइड नहीं हैं, जो स्किल्ड नहीं हैं इस तरह से, ठीक है, मीन्स बाय द कॉलेजेस, बाय द यूनिवर्सिटीज़, बाय गवर्नमेंट, उनके पास कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है इस तरह से, तो वो पर्सन सारे क्वैक्स बोले जाएंगे, वो क्वैक हैं, मीन्स फर्जी हैं, झोला छाप हैं, व्हाटएवर। तो ये प्रोफेशन है जिसमें एक स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी, जो
पूरा करने के बाद ही वो पर्सन उस प्रोफेशन को डील करेगा, वहाँ से जो भी अर्न करेगा वो उसके अलग अलग फील्ड्स के बेसिस पर होगा, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अर्न करने में कितनी डिग्री रखता है, कितना अर्न कर पाता है, ठीक है। तो प्रोफेशन रिफर्स टू द एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। अब लिविंग तो अर्न करनी सभी को है, कोई लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशंस कर रहे हैं। बिजनेस में क्वालिफिकेशन की बात कहीं पर नहीं आई थी, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा स्किल है जो किसी के अंदर हो सकता है। उसके लिए भी वैसे डिग्रीज़ हैं अब, क्योंकि जितने भी अब कंपनीज़ बनती हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट ईयर में, फिर 12th करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे कॉमर्स में, और कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोफेशंस हो गया, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है अ पर्सन हु इज़ डूइंग अ जॉब, है ना। मीन्स जैसे अभी सीरीज चल रही थी कि आप 12th कर रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, देन आफ्टर यू विल गेट अ जॉब इन एनी फील्ड, या आप अपना बिजनेस करते हैं, है ना, या आप किसी और फील्ड पे जाना चाहते हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं, कॉमर्स में तो कमी ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ हम हैं, सिंपल सी बात है। हम कॉमर्स वाले हर जगह हैं, हमारे यहाँ कभी रिसेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हमें जॉब्स की कोई दिक्कत नहीं होती, हमें बिजनेसेस की कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे अंदर का स्किल ही ऐसा डेवलप हो जाता है। अभी स्टार्टिंग है आपका, फर्स्ट मंथ है कॉमर्स में, अभी देखिएगा आप किस दुनिया में जिएंगे, जिसका रास्ता हर तरफ जाता है ना। हम में कोई स्पेशल जो है वो लाइन नहीं चाहिए कि साहब इसी लाइन पे जाने को है, हमारे लिए सारी लाइंस हैं। मैं जैसे इस बात को मतलब कहता भी हूँ, है ना, और कुछ बच्चे हंस भी देते हैं इस बात पे। जहाँ पैसा है वहाँ हमें, क्योंकि जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट होगा वहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट भी नहीं हुआ ना, वहाँ मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हमें। हम सब जगह हैं, हम जो हैं क्या कहते हैं, यूनिवर्सल हैं। कॉमर्स यूनिवर्सल है, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब है एनी काइंड ऑफ जॉब, एनी काइंड ऑफ वर्क जो किया जा रहा है, ठीक है। एक रेगुलर सैलरी, रेगुलर वेजेस, रेगुलर क्या कहेंगे, रिम्यूनरेशन के लिए, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच अ पर्सन वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर for a fixed remuneration. People who work in bank, insurance companies or government departments as a managers, assistants, clerks, peons or security guards or whatever they are doing, right? वो employment है। Is it done? तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। पॉज करके आप इनकी डेफिनेशंस जो लिखी हैं या फिर अपनी तरफ से भी डेफिनेशंस बना सकते हैं, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है। वर्ड या जो आप कॉमर्स में हैं, मीनिंग ठीक होना चाहिए, आपके डेफिनेशंस, आपके जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो ठीक माने जाएंगे और मार्क्स मिलेंगे 100%। अब भी मिलेंगे और बोर्ड क्लास में भी मिलेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में भी मिलेंगे, ठीक है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होता है, ठीक है, 30 to 50 वर्ड्स में, देन आफ्टर द 80 to 120 वर्ड्स में जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनका ध्यान रखना होता है। और खूब सारा लिखने और समझने की भी ज़रूरत होती है। खूब सारा लिखने की ऐसा नहीं है, क्योंकि केस स्टडीज़ आती हैं बेसिकली, अभी इस ईयर में भी आएंगी, वो आपको तैयार करा दी जाती हैं। केस स्टडीज़ आती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस 30% के रेशो पे होता है, और बाकी पेपर चलता रहता है। अभी तो आप सीखना शुरू करिए, पहले सीखने पे ध्यान दीजिए, लिखना अपने आप आ जाता है और मार्क्स भी अपने आप ही आ जाएंगे। सीखना बहुत ज़रूरी है, सीख लिया तो सब कर लिया, मार्क्स तो पीछे पीछे घूमेंगे, सच में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, पहले करेक्टरिस्टिक्स की तरफ ध्यान दो। करेक्टर क्या होता है, करेक्टर क्या, ये जो करेक्टर लिखा है, करेक्ट किसी भी चीज़ का करेक्टर क्या होता है।
हाउ अ थिंग इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड करेक्टर। हाउ इट इज फॉर्म्ड, कैसे बना, इक्विपमेंट क्या क्या लगे हुए हैं अंदर, है ना, क्या क्या किस किस चीज़ ने इसको फॉर्म किया, बनाया, वो करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इससे दूसरे तरफ होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, हाउ टू यूज इट, द यूजेस ऑफ इट, वो यूज जो होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स और करेक्टर्स, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न होता है आपको, कई इसमें शायद सोशल साइंस पढ़ते वक्त भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा, और आगे भी शायद इसमें नहीं होगा अब, अगर आप इस तरह से समझ लेते हैं। तो करेक्टर्स का मतलब है फॉर्मेशन, बना कैसे है। जैसे आप किसी को करेक्टर कहते हो कि बड़े बहुत अच्छा करेक्टर है, क्योंकि उसने अच्छे बिहेवियर को मिला रखा है, अच्छे एटिकेट्स को मिला रखा है, अच्छा उसके पास जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ लिविंग है ना, वो इफ़ेक्ट्स अच्छे होते हैं। ठीक है, मतलब वो स्वभाव में जी रहा है, प्रभाव में नहीं जीता, ऐसे करके, तो वो करेक्टर है किसी पर्सन से रिलेटेड, जैसे आप मानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी जितनी भी चीज़ों में आप देखेंगे करेक्टर कौन है, करेक्टर का मतलब है हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे बना। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है वाई इट इज़, क्यों है, यूज़ क्या है इसका, यूज़ ऑफ इट, वो ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। वो भी आप आगे पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, कि बिजनेस करना क्यों है भैया। ठीक है, वैसे इसका जवाब बहुत आसान सा है, पैसे कमाना है और क्या करना है, राइट। सो नाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, क्या करेक्टर है। नंबर 1, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। साफ सी बात है, समाज सेवा के लिए जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं वो अलग हैं, यहाँ बिजनेस है। अब बिजनेस अगर किया है तो यहाँ पर कोई सोशल सर्विस नहीं है, फ्री नहीं है। ठीक है, सोशल सर्विस है, मीन्स यू आर नाउ अ बिजनेसमैन, यू आर प्रोड्यूसिंग थिंग्स और यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सो इन दिस वे आप सर्विस तो कर ही रहे हैं सोसाइटी की, आप उन चीज़ों को मुहैया करा रहे हैं, अवेलेबिलिटी दे रहे हैं मार्केट में, अफोर्डेबिलिटी दे रहे हैं मार्केट में, है ना। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आप एक सोशल सर्विस कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकली कर रहे हैं, राइट। इकोनॉमिकली सर्विस दे रहे हैं आप, दे तो रहे हैं, सोशल सर्विस तो हो रही है, क्योंकि जब आप सोसाइटी के लिए मार्केट तक सामान को पहुंचा रहे हैं, आप ध्यान रखते हैं कि आपका प्रोडक्ट कम नहीं पड़ना चाहिए किसी भी एरिया में, आपका भी फ़ायदा है पब्लिक का भी, दोनों इस बात में। अगर आप अपनी जो सेल, जो डिमांड और नीड का जो वो इक्वेशन है उसको बैलेंस रखते हैं, ठीक है, नीड और डिमांड के हिसाब से, और आपकी सप्लाई जो है उसको बैलेंस रखते हैं इन दोनों के साथ, नीड डिमांड सप्लाई, है ना। डिमांड और सप्लाई, वैसे इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने वाले हो आप इसे, बहुत अच्छा सा पॉइंट है ये। तो अगर आप ये रखते हैं तो एक सोशल सर्विस तो चल ही रही है कि आप ये अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी रखते हो प्रोडक्ट की, लेकिन रखते कैसे हो, इकोनॉमिकली रखते हो, इसलिए आप बिजनेस एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, पहला करेक्टर है उसका। ठीक है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द मनी एंड ऑल द मनी टर्म्स विल बी यूज्ड in providing services, in selling goods and products, means it is economic activity, right. Second, production or procurement of goods and services, you produce the things for humans, you produce the things for society, राइट। ये भी एक इसका करेक्टर, आप प्रोड्यूस करते हो, गुड्स देते हो, चाहे आप सर्विसेज देते हो, है ना, फिजिकल अभी बताया था इसके बारे में, सर्विसेज देते हो, आप कोरियर सर्विस देते हो, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, आप बैंक हो कोई, या आप ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हो, आप होटल में काम, मतलब होटल्स हैं आपके, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी एक, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ नहीं होती ना, ये सर्विसिंग है, राइट। तो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, गुड्स प्रोवाइड करते हो, सोसाइटी की हेल्प कर रहे हो, ये आपका करेक्टर है, राइट। आप ये मतलब कि करेंगे तभी आप बिजनेस बनेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब जब आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसके लिए सेल करेंगे, राइट, सेल करेंगे उसको, अपने गुड्स को, या एक्सचेंज करते हैं गुड्स को, सर्विसेज को, जिससे कि ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई हो सकें। ठीक है, अगर सेटिस्फिकेशन को समझना है कि बाकी कोई भी शायद चीज़ मार्केट में ज़रूरी नहीं हो जाती, सबसे पहली चीज़ ज़रूरी हो जाती है फूड आइटम्स और दूसरे नंबर पे मेडिसिन्स।
अभी भी amid कोरोना वायरस दिस इट इज़ हैपनिंग, राइट? यस और नो? तो फूड एंड मेडिसिन गवर्नमेंट ने भी इन्हीं को रिलीव किया है, ठीक है? तो सेल आपको करना होता है, ये भी एक करेक्टर बिजनेस एक्टिविटीज़ का है। ओके, 3 याद हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन करेगी और सेल करेगी, राइट? 4th नंबर, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया और आप घर बैठ गए, भैया पैसे कमा लिए, 10 के 12 हो गए, ठीक है? या मान लो 100 रुपये लगाए थे, 120 रुपये आ गया, 150 रुपया कमा लिया, चलो घर बैठो। इट इज़ नॉट अ बिजनेस, आप बिजनेस नहीं कहला पाएंगे फिर, ठीक है? और लोग शायद आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं तो आपके प्रोडक्ट को उतनी रेस्पेक्ट ना दे सकें, क्योंकि ठीक है, हाँ आपने बनाया था, फिर ये कंपनी बंद हो गई थी, फिर भाग गया था मार्केट से ये तो, और फिर से दोबारा आ गया है, अब क्या पता इस बार भी ऐसी हो। क्योंकि जो प्रोडक्ट यूज़ होता है वो टेस्ट, डिमांड, है ना, फ्लेवर, प्राइस और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर वो प्रोडक्ट बिकता है बाज़ार में, है ना? अगर कोई आपने प्रोडक्ट बनाया था, पब्लिक को ठीक है पसंद आ गया था, उन्होंने उसको परचेस करना शुरू कर दिया, आपने सप्लाई बंद कर दी, अब पब्लिक उस एक हैबिट में आ गई थी आपके प्रोडक्ट के, आपने बंद कर दिया, आप रेगुलर बेसिस नहीं रहे, ठीक है? तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो अगर बिजनेस का करेक्टर ये कह रहा है कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, आपको कंटिन्यू मार्केट में, रेगुलर मार्केट में रहना पड़ेगा, आप प्रोडक्ट को बेचेंगे और लाएंगे, राइट? तब ये एक आप बिजनेस बन पाते हो, एक बिजनेस एक्टिविटी बन पाती है, ठीक है? इसलिए तो अभी जब थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि वो स्क्रैपर आता है, वो आप रद्दी दे देते हो उसको, अखबार दे देते हो, मान लो न्यूज़पेपर्स, है ना, या पुराने बर्तन थे या कुछ और टूटा फूटा सामान था वो दे दिया आपने, तो इट इज़ नॉट अ बिजनेस, वो बिजनेस नहीं है आपका। पहली चीज़ तो आपने वो प्रोडक्ट यूज़ किया है, उसको मैन्युफैक्चर नहीं करा, और उसके बाद आपका ये रेगुलर बेसिस नहीं है ना, मंथली भी शायद नहीं होने वाला है, रेगुलरिटी नहीं है, ठीक? तो जहाँ भी रेगुलरिटी नहीं है बिजनेस में, वो उसका करेक्टर नहीं होगा। करेक्टर कब होगा? जब गुड्स और सर्विस की डीलिंग्स रेगुलर बेसिस पर हो रही होगी, कंटिन्यू चलना चाहिए काम, नाउ इट इज़ कॉल्ड द करेक्टर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट नंबर, प्रॉफिट अर्निंग। सिंपल सी बात है भैया, और मार्केट में हैं क्यों? हम प्रॉफिट कमाने के लिए हैं। 10 के 4 करने हैं, 10 के 14 करने हैं, ठीक है, 1 के 2 करने हैं, मतलब जो कहावत कही जाती है। तो प्रॉफिट अर्निंग है तभी वो बिजनेस एक्टिविटी डील होगी, राइट? नेक्स्ट नंबर, प्रॉफिट अर्निंग तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप बिजनेस कर ही इसलिए रहे हैं ताकि आपको मार्जिन्स मिल सकें। मार्जिन्स मतलब डिफरेंस, जितना आपने इन्वेस्ट किया था और उसमें से जितना आप फिर आपने सेल किया उसको, मीन्स जैसा, हाँ अभी सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझ लो इसे, जो आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट, राइट? सेलिंग प्राइस आपने 2 रुपये का बना के तैयार किया और उसका रेट जो है मान लो 3 रुपीज़ 50 पैसे रख दिया, है ना, और 3 रुपीज़ 50 पैसे मिला और आपने इसको सेल करवा दिया, तो प्रॉफिट कितने का मिला आपको, राइट? आपको 1 रुपये 50 पैसे मिल रहा है ना? इसमें से आप फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करोगे, पैसा दोगे जगह जगह पे, अलग अलग जगह से, तो ये प्रॉफिट है। SP माइनस CP इक्वल्स टू प्रॉफिट। मीन आपका CP ज़्यादा होता है, SP कम होता है, सॉरी SP ज़्यादा होता है, CP कम होता है, तो आपको प्रॉफिट अर्न होता है, और आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस में हैं, ठीक है? वरना तो आप बिजनेस नहीं कहलाएंगे, वो NPOs कहलाते हैं फिर, अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं बस, ठीक है? जैसे अभी बोल रहे थे कि कोरोना वायरस की वजह से जो लोग हेल्प कर रहे हैं, सभी लोग हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जस्ट दे आर डोनेटिंग इट, तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NPOs, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्लास 12th में चैप्टर है आपके यहाँ, इसके अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, 10 मार्क्स का आता है ये चैप्टर। ओके, नेक्स्ट नंबर आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। अब एक करेक्टर और है इसका, यहाँ पर ये अनसर्टेन होता है,
अनसर्टेन मतलब दैट इज़ नॉट डिटरमाइन, दैट इज़ नॉट, जैसे हिंदी में एक शब्द आता है निश्चित नहीं है ना। रिटर्न्स का मिलना, रिटर्न्स का मतलब है कि आपने जो सेल किया है आपको उसके एवज में पैसा वापस उतना ही मिल जाएगा, है ना। 1 लाख रुपीज़ का प्रोडक्ट आपने मार्केट में डाला और आपको मिल रहा है साहब 85,000, 90 मिल गया, बहुत है, बहुत अच्छा बिजनेस। 10,000 का डेप्ट चला गया, डेप्ट कहते हैं उसको, है ना, वो मिलना नहीं है, या तो बैड डेप्ट हो जाता है वो, फिर मिलना ही नहीं है पैसा, मर गया पैसा, सामान ख़राब हो गया जाते हुए ट्रांसपोर्टेशन में, है ना, चोरी हो गई, जल गया, मार्केट में नहीं बिक पाया, एक्सपायर हो गया, और आपने स्कीम लगा रखी थी, रिटेलर्स थे कि हम रिटर्न ले लेंगे, आपको रिटर्न लेना पड़ा, ख़त्म। तो अनसर्टेनिटी है, निश्चित नहीं है कि आपको रिटर्न्स मिलते हैं, ये भी बिजनेस का एक करेक्टर है थोड़ा नेगेटिव करेक्टर, लेकिन ये भी फेस करना होता है, सिर्फ आपको अर्न ही नहीं करना है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही हो रहा है दुनिया में। सो लास्ट में आता है इसके एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, रिस्क का एलिमेंट है ना, ये पूरा एक पॉइंट है अभी आगे आपके लिए। रिस्क, बिजनेस रिस्क क्या होते हैं, रिस्क क्या होता है, व्हेन यू आर जस्ट एग्री टू इन्वेस्ट विदाउट द you know that without any destiny, है ना, means you are not just satisfied that in future you will get something, you will receive anything, uncertain है, this is risk, है ना। तो रिस्क एलिमेंट लगातार बिजनेस के साथ साथ चलता रहता है, ओके। तो ये इस तरह से करेक्टर्स बिजनेस के पूरे हो जाते हैं, राइट। अब दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, है ना, इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अभी आपके पास वर्क क्या है कि आप सभी के डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ें, मींस ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कब होती हैं, नॉन इकोनॉमिक कब होती हैं, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन कब होता है, कब एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, उसके करेक्टर्स क्या होते हैं, राइट। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, and just note it down it and prepare the questions about it.